हाँ जी, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक ठीक है, Okay, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। कट करिए, अब स्टार्टिंग से हो जाएगा, अब कंप्लीट है। बोलिए। Yes. Good evening, sir. I am a resident of Dream City, Mumbai. I have completed my graduation from NJ Acharya DK Maratha College. Thank you for shortlisting me for this interview. My name is Arun Bhaskar Shetty, and I am pursuing my MBA degree from Indira School of Business Studies in specialization of finance. I have recently completed my internship from Whitehead Junior, where I was the user engagement officer, and my key work was evaluating and analyzing the data to generate lead for the company. My key achievement for the company was I was offered a PPO, that is pre-placement offer, within a month of 3.5 lakh rupees, and promoted as an MIS, that is Master in System, looking at my interpersonal skills. Apart from that, I have completed my project in comparing a mutual fund, where I was comparing two mutual fund houses, that is SBI, State Bank of India, and HDFC Bank. And I have completed various certificate courses, and few of them are CLDP, that is Career Learning Development Program, regarding mutual fund, financial advisories, and some about marketing projects. Great. Anything else you would like to know from me? बोलो, लास्ट कंप्लीट तो करो, कंक्लूजन। हाँ, इसमें मैं यही मेरा मेन था कि मैं आगे इसको खत्म कैसे करूं। नहीं आता है क्या? Anything else, sir, you like to know from me? Please let me know. I will be very happy to share with you. एकदम इजी है, एकदम ऐसा बोलना चलेगा सर? एकदम हाँ। Apart from this, anything else do you like to know from me? I will be very happy. Apart from this, okay. Apart from this, हाँ. Apart from this, if you want anything want to know about me, I will be very happy to tell about myself. हाँ, बस ये बहुत जरूरी है जो बोले ना। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछता है बेसिकली ये लोग वो है कि व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। ओके, तो क्या बोलोगे? My greatest strength is I am very much positive person. I have a good communication skills and बस इतना मैंने बोला आज तक। ठीक है, ये दो ही चीज है। जो भी चीज बोलोगे स्ट्रेंथ और कम्युनिकेशन स्किल, बैक इट अप विद एग्जांपल। तो आप बोल रहे हो पॉजिटिविटी, आपको स्ट्रेंथ याद रखना, मेरा वीडियो भी है यूट्यूब का। तो स्ट्रेंथ आपका रिलेटिंग टू द जॉब प्रोफाइल होना चाहिए। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है? एनालिटिकल स्किल्स। तो आप बोलोगे आई हैव अ ग्रेट एनालिटिकल स्किल। तो जो भी जेडी में लिखा है ना वही आपको मुंह से बोलने का कोशिश करना है, और उसको बैक इट अप विद एग्जांपल। तो आप बोल रहे हो एनालिटिकल स्किल, तो क्या बोलोगे? एनालिटिकल स्किल में आपको क्यों लगता है एनालाइज अच्छा करते हो कोई भी चीज को? एग्जांपल बताइए। आप एनालाइज अच्छा से करते हो? हाँ, एग्जांपल बताइए। फॉर एग्जांपल, आई वाज मींस because of my analytic skill, I was promoted as a MIS in Whitehead Junior, बस हो गया। where I was doing क्या? means I was where I was in Whitehead Junior, I was analyzing their data of calling calls to the customer. समझ गए। तो ये याद रखिएगा, जब भी स्ट्रेंथ पूछता है ना, तो स्ट्रेंथ हमेशा ना उसका काम जो है ना जॉब डिस्क्रिप्शन में जो लेके रखा है ना स्किल, उससे ना कहीं मैचिंग करना चाहिए। प्लस यू हैव टू गिव द एग्जांपल आल्सो, लाइक यू गिव योर पर्सनल एग्जांपल एंड दैट एग्जांपल हैज टू बी रियल। ठीक है। नाउ व्हाट इज योर वीकनेस? तो एनालिटिकल स्किल एकदम याद रखिएगा। और दूसरा आपने जो बोले थे, क्या बोले थे? पॉजिटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल में दे दीजिएगा। आई हैव एंटर्ड इनटू मेनी व्हाट्सएप ग्रुप, I am good in networking, I have good brand presence in LinkedIn, I have good social media presence, I like to communicate with people, I am involved in many NGOs। ऐसे कुछ भी आप एग्जांपल देके कर दीजिएगा। Okay, what is your weakness? What do you think is your greatest weakness? I communicate very fast. Okay, so why do you think this is the okay? You communicate very fast, okay, right? Yes. Second weakness, I trust people easily. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, तो मेरा YouTube का वीडियो भी था इसके ऊपर में, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। स्ट्रेंथ हो या वीकनेस हो, दोनों का है। बेसिकली वीकनेस जब आप बोलते हो ना, तो वीकनेस आपको बताना नहीं है किसी को। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है कि आपका वीकनेस कुछ भी आप नहीं बताओ। ठीक है, तो आपको ऐसे रखना है कि यू सेड कि आई कम्युनिकेट वेरी फास्ट। तो ठीक है, यू सेड कि आई कम्युनिकेट वेरी फास्ट, बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट डे बाय डे। 5-6 महीने पहले मैं कम्युनिकेट वेरी फास्ट करता था, बट आई हैव ट्राइड टू ओवरकम दिस। या आप बोल सकते हो कि मेरा पेशेंस कम था पहले, पर मैंने स्टॉक मार्केट जब से करने लगा, अगर आपने किए हो तब, तो मेरा पेशेंस इंप्रूव हो गया। लाइक दिस यू कैन से। या आप कुछ भी ऐसा चीज बोल दो कि आपने उस चीज को ओवरकम कर दिया, कि मेरे पास ये प्रॉब्लम था, मैंने इसको ओवरकम कर दिया, ये तरीका है। दूसरा चीज ये बोल सकते हो कि टू बी ऑनेस्ट सर, आई डोंट थिंक आई हैव एनी मेजर वीकनेस विद रिस्पेक्ट टू द जॉब प्रोफाइल,
but yeah, I communicate very fast, but I try to overcome that, मतलब by lot of practice and all. ये वाला एक ही वीकनेस बताइएगा। वीकनेस वो लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि वो उसका जो वीकनेस है उससे उसका कंपनी में कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला काम में। आप बोले कि एंगर इश्यूज तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना उनको। आई एम शॉर्ट टेम्पर, वो सब चीज बोलने से वो लोग को दिक्कत हो जाएगा जॉब में, समझ गए क्या? तो हमेशा ऐसा वीकनेस बताइए जो इतना बड़ा नहीं हो, जिसे कम्युनिकेट वेरी फास्ट, उसको आप इंप्रूव कर लिया, समझ गए? पर आई कम्युनिकेट वेरी फास्ट बट द अदर पीपल अंडरस्टैंड्स माय कम्युनिकेशन। तो ये भी आप बोल सकते हो, हाँ, आई कम्युनिकेट वेरी फास्ट बट द अदर पीपल अंडरस्टैंड्स माय कम्युनिकेशन, दैट इज आल्सो द थिंग, बट आई एम ट्राइंग टू इंप्रूव दिस एंड इट हैज इंप्रूव्ड अ लॉट कंसिडरेबली। ओके, ये चीज आपका एकदम सही है। और आपको पूछेगा व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी? ये नहीं पूछेंगे, वो लोग फिक्स होता है वो। फिक्स होता है, नहीं पूछेंगे। कभी पूछ ले तो बोलना एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आई एम थिंकिंग ओनली अबाउट लर्निंग एंड करियर, तो आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दिस। एक चीज वो लोग पूछेंगे, हाउ विल यू मैनेज द वर्क लाइफ बैलेंस? Here you have to work for 18 hours in out of 24 hours. How will you manage that? About Sir Whitehead Jr., the work balance was very high, but still I managed the situation and completed the targets that time also. So work-life challenge is the challenging for me, but I can face the challenge. You can say like this, ki, sir, work-life balance will be bad in almost every area, working in a private sector. So it's something that it is you can't control about it. Yeah, I am also a young professional, so I have a lot of energy at present. So थोड़ा हंस लीजिएगा। I have also a lot of energy at present, and previously I have worked also. So I don't think this is a challenge for me, too big a challenge for me. Okay, तो ये चीज है। एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि आपका घर में कोई बर्थडे पार्टी हो गया, ये हो गया, और ऑफिस का काम हो गया, या आपका सिस्टर का मैरिज है और ऑफिस का काम भी जरूरी है, तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे? सिस्टर का मैरिज को दोगे कि ऑफिस का काम को दोगे? व्हाट यू विल डू? ये आपको बोला कि आपको संडे को इम्पोर्टेंट काम हो गया और फेस्टिवल है, दिवाली आ गया और ये सब न्यू ईयर, देयर इज अ न्यू ईयर एंड देयर इज एन ऑफिस वर्क आल्सो एंड इट इज संडे, तो व्हाट विल यू डू? या आपको बोल दिया कि आपको जम्मू कश्मीर जाना पड़ेगा, आपका घर महाराष्ट्र में, एंड दैट इज वेरी अर्जेंट, यू हैव टू गो टू इट, तो आप क्या करोगे सब सिचुएशंस में? कुछ भी पूछ सकते because it will be my contribution to the success of the company. इसका एकदम सिंपल आंसर रखेगा, सर आई एम अ यंग प्रोफेशनल, एट प्रेजेंट नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी अदर देन माय करियर, so I am career oriented, yeah, whatever good for the company I will always try to do it at my end to the extent it is possible. Okay, तो यही बोलने का कोशिश करेंगे कि अभी मेरे लिए करियर एक बार रिपीट करो ना, मुझे लिखना है। कुछ भी नहीं है, हिंदी में बताता है। अभी रटो मत कोई भी चीज को, हर समय रटो मत, देखो मेरे को देखो एक बार। नहीं, वो मुझे रिकलेक्ट करने में याद आएगा, ठीक है, मैं अपने वर्ड्स बनाऊंगा फिर। नथिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर मी अदर देन माय करियर एट प्रेजेंट, बीइंग अ यंग प्रोफेशनल, नथिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर मी अदर देन माय करियर। कोई भी बिहेवियर क्वेश्चन है ना, हो ना, आपका सीटीसी पूछ ले, वर्क लाइफ बैलेंस पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आपको कोई लड़की को पूछ ले, लड़का को पूछ ले, हाउ विल यू मैनेज दैट, डू यू हैव गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कुछ भी आपको पूछ ले, किस तरीका का आप मैरिज के बारे में कब सोच रहे हो, एक आंसर आप बोल दोगे ना, एक लाइन, नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी अदर देन माय करियर इन नेक्स्ट 2 to 3 years. Okay, even my family is supporting me totally in this. तो सारा बिहेवियर क्वेश्चन का एक ही लाइन में खत्म हो जाता है कहानी। एकदम अच्छा से बोल दीजिएगा, अभी मेरे लिए करियर से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं अगला 2-3 साल, तो समझ गए? अभी तो मैं इतना ही फोकस कर रहा हूँ। और बोलेगा 5 साल बाद, 5 साल किसने देखा है? सब बोलना नहीं है ना। नहीं, अगर पूछ ही ले कि हाँ, ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछता है लोग कि व्हाट, हाउ डू यू सी योरसेल्फ नेक्स्ट 5 years फ्रॉम नाउ? आई एम नॉट समबडी हु थिंक्स टू मच अहेड ऑफ द फ्यूचर, आई लाइक टू स्टे इन द प्रेजेंट, बट या next 5 years from now I will be certainly want to be in your company, I will be dream to be in your company in a higher position, that is one of the things that I will definitely try to do. तो ये तरीका आप बोल सकते हो कि आपका फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, स्टडीज को लेके, एजुकेशन को लेके, कभी मत बताइएगा। जो भी प्लानिंग होगा उनको बताने का दरकार नहीं है। मैरिज का क्या प्लानिंग है, एजुकेशन को लेके क्या प्लानिंग है, कुछ भी बताने का आपको दरकार नहीं है इनको, समझ गए क्या? इनको बोलिए वाला अभी कोई प्लानिंग नहीं है, एक एक दिन करके चलते, बस यही है, आपके फॉर्म में हमको काम करना है अगला 5, 10, 25 साल जो भी है, तो वही प्लानिंग है। जो भी होगा इधर ही रहने की कोशिश करेंगे, तो वही है, प्लानिंग बताना नहीं है, अभी कोई प्लानिंग नहीं है, समझे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनको प्लानिंग जैसे बता दोगे मेरे को एजुकेशन करना है तो मुश्किल कर दोगे, हाउ विल डू जॉब,
या मैरिज वगैरह तो आपको ऐसे भी अभी नहीं है टेंशन, तो ठीक है। ये प्लानिंग वगैरह कभी नहीं बताना है लोगों को, ठीक है, कि 5 साल बाद आप क्या करने वाले हो उनको नहीं पता, किसी को पता नहीं है इस चीज, ठीक है, इतना दूर का सोचता ही नहीं है। ये हो गया। और व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी एंड द जॉब डिस्क्रिप्शन? आपका हैंग हो गया क्या? हाँ आप हैंग हो गए, ग्लिच हो गया। हाँ अभी क्लियर हो गया। ठीक है। तो व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी एंड द जॉब डिस्क्रिप्शन दैट यू हैव टू प्ले? बताइए। ये मैं पढ़ लूंगा सर अभी। थोड़ा बहुत अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा, पढ़ लिए तो बोल के दिखाइए बिना पढ़े, क्या समझ में आया आपको, बोलिए। IC is a IC is an intercontinental exchange that is founded in 2000, and the founder is Jeff Sprecher. And about the company, a company is an energy source company which have 55% exchange, 27% fixed income, and 18% moderate technology. And total, the company turnover is $6.6 billion. आप है ना एक बात बताइए, आप है ना पूरा रटका मार के आ रहे हैं, देखिए अब आप है ना बच्चे नहीं है, समझिए। ये जो क्लास 10-12 का बच्चा होता है ना, तो वो लोग ऐसे रटा मार के टीचर को बताते हैं। अब आप यू आर ग्रोन अप, मेरे हिसाब से 22 के तो हो गई, राइट, कि उससे पढ़ी है। हाँ, तो अब वो छोटे बच्चे नहीं है। अब वो देखिए टीचर जो होता था क्लास 10-12 का, तो आके वो पढ़ पढ़ के बोलता था। अब आपको थोड़ा ना मतलब ऐसे बोलना है कि आप दूसरा को लगे नहीं कि आप रट के आया, भले आप रट के आया होगा तो बोलना आई गूगल्ड अबाउट योर कंपनी, आई डिड रिसर्च अलॉट, तो व्हाट आई अंडरस्टूड, तो नौटंकी करना है आंसर में। तो द फाउंडर नेम इज जॉन, जो भी इसका कंपनी है, एंड आई हैव रेड अबाउट इट दैट इट हैज 3 वर्टिकल्स, वन इज ऑफ एक्सचेंज 55% I guess, and 25% on data technology something this name, and one is this. And apart from this, this is a stock exchange, so it deals basically with the energy sector, and this is in basically in data mining and everything. नौटंकी करना है थोड़ा बहुत कि मैंने थोड़ा थोड़ा आपका कंपनी के बारे में, आई थिंक माय जॉब विल बी टू कोलेट द डेटा एंड एनर्जी सेक्टर, एनालिटिकल स्किल्स विल ऑल बी डेवलप्ड। या आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट फ्रॉम यू आल्सो regarding the company. I would definitely like to know more about, I am not knowing everything, but I would like to know more about your perspective towards the company and the role that I have to play. समझ गए? तो उसको ही फेंक दीजिएगा फिर से क्वेश्चन, थोड़ा बहुत अपना बता के मैं और जानना चाहूंगा आपसे इसके बारे में, समझिए संजय, पूरा डिटेल में, समझ गए? तो ये चीज आपको रखना है, कैसे बोलोगे पीछे, नौटंकी करके बोलना है, समझे? ये चीज को रट्टा मार के नहीं बोलना है। बोलिए बोलिए। I have Googled about your company. IC is an intercontinental exchange, and the founder of this company is Jeff Pitcher, and founded in 2000. It is a energy source company based. It has 55% of exchange and something 27% in fixed income and data science, and 18% in mortgage. And average turnover of the company is $6.6 billion. About energy source, it has 3 level: upper stream, mid stream, and low stream. And I would means that all about I know about the company. I would like to know more about the company from you. About the what job description के बारे में बताइए, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन करना है आपको? What is the job description that you want to do? About हाँ बताइए। ये तो ट्रेनिंग एसोसिएट ही बोला है सर उन्होंने। आप क्या करना है इसमें ट्रेनिंग एसोसिएट में? About the job description, I have gone through it. It was like I have to do 24/7 work, which I am comfortable with that. The some part that impressed me was I have the fluid environment. That means I have a time shift change, so I like to work in different timing also. Plus, it's a New York based company, so I would love to work with an international company. बेसिकली एनालिटिकल स्किल्स यू हैव टू परफॉर्म, तो आपको एनर्जी सेक्टर के बारे में जानना ही सब बोलिएगा और में क्या एनालिटिकल स्किल्स विल बी इन्वॉल्वड एनर्जी सेक्टर के बारे में, मुझे आपको एनालाइज करके देना है वो सब डेटा वगैरह, डेटा माइनिंग एंड ऑल दैट आई हैव टू डू। ओके, ये सब थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है? मोटा मोटी मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन जो आपको पूछता है, व्हाई डू वी हायर यू, जो मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन पूछता है। पैकेज कितना देगा आपको ये मोटा मोटी? सर आपका फिर है पैकेज इज अभी तो इंटर्नशिप है 9 महीने की, मतलब ट्रेनिंग पीरियड पूरा सिखाएंगे वो 9 महीना 22,500, एंड 9 महीने बाद ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हैदराबाद अभी से जाना है। 3.6 प्लस पीएफ कटेगा, इंश्योरेंस सब मींस हाथ में 30,000 आएगा इन हैंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूछेगा व्हाई डू वी हायर यू, तो क्या बोलोगे? सर मैं ये मींस कंपनी का जो होता है ना स्ट्रेंथ, वो देख के बोलता हूँ।
हमेशा। क्या बोलोगे फिर? व्हाई डू वी हायर यू? हम लोग को क्यों आपको हायर करना चाहिए? नहीं पता, अभी मैंने पढ़ा नहीं है उसके बारे अरे इसमें क्या पढ़ना है आपको? आप बताओ कि आप क्यों केपेबल हो, आपको क्यों हायर करें 100 आदमी में से? आपको क्यों लगता है, आपको क्या, आप में क्या खूबी है वो बताइए ना। because I have a best analytic skills. Means I have used analytic skills in White Hat Junior also, and I will love to work with a finance company which who is giving an opportunity for an analytic वहाँ skills. पर जो अचीवमेंट So I will be the best fit for this. अचीवमेंट था ना आपका प्रीवियस फॉर्म में, जो भी अचीवमेंट आप बताए थे ना स्टार्टिंग में, वही यहाँ पर भी बोल दीजिएगा कि मेरे को पहले फॉर्म में भी बहुत अचीवमेंट हुआ था, मैं फटाफट प्लेस हो गया था, आई एम वेरी एनर्जेटिक, हार्ड वर्किंग, आई कैन वर्क 24 आवर्स करके। ओके, तो आई एम वेरी करियर ओरिएंटेड, और इतना सारा अपने स्किल लाए हो, बाप रे, बहुत सारे सर्टिफिकेट है, वो सब बता दीजिएगा, मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेट भी लाया है। तो ये सब चीज आई थिंक आई एम वेरी गुड, बेस्ट फिट फॉर दिस जॉब, समझ गए? तो ऐसे करके बता दीजिएगा अपना स्किल, एक्सपीरियंस, जो भी अचीवमेंट है वो सब बता दीजिए। ठीक है, मेरे हिसाब से आपका हो गया। आप थोड़ा ना एक चीज याद रखना, मैं यही बोलूंगा, आप कम्युनिकेशन स्किल में ध्यान दो। कम्युनिकेशन में आप फास्ट बोलते हो, और आप फास्ट बोलने के साथ साथ आप अपने रट्टा मार के बोलते हो, तो वो नहीं करना है। सामने वाले को से बात कर रहे हो, याद रखना, उसके सामने ना वो छोटा बच्चा जैसे क्लास 12 का करता है ना, वो टीचर आता है तो उसको वो रट्टा मार के बोलता है, वो वाला काम नहीं करना है। अब आप ग्रोन अप हो गए ना, तो आपको ना नौटंकी करके बोलना है वही चीज। तो आपको लगना नहीं कि बुरा रट क्या है, और धीरे धीरे स्लोली आराम से बोलना है। कुछ चीज भूल गए तो कोई अभी भी आप सोच रहे हो कुछ नहीं वो मत करिए, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, मेरे हिसाब से आपका अच्छा ही है कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, बस फटाफट नहीं बोलना, आराम से बोलना है, बोल लोगे ना। हाँ और एकदम ही yes, sir. कोई चीज को आपको क्या लगा कि आपको क्या चीज को लेके डर लगता है? कोई चीज को लेके डर लगता है क्या जब इंटरव्यू में जाते हो तो? वन थिंग दैट फियर्स यू? नहीं नहीं सर, मेरा मतलब ब्रेन में चलते रहता है कि नेक्स्ट वर्ड क्या रिकलेक्ट करना है ना, तो वो मेरे ब्रेन में चलते रहता है। रहता है, थोड़ा सा टेंशन रहता है क्या? थोड़ा बहुत टेंशन रहता है बस। हाँ, नेट मेरे को रिकलेक्शन में थोड़ा ये हो जाता है, रिकलेक्ट करके ना मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा और प्रोफेशनली बोलूं, और प्रोफेशनली बोलूं, तो ना उसमें ना मेरा ठीक है, आप रिकलेक्शन ऐसे में ठीक ही बोल रहे हो। फंबल हो जाता हूँ। आपका कंटेंट वगैरह में तो सब ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस भी ठीक है, बस आप थोड़ा सा धीरे धीरे आराम से बोलो, चिल आउट रहो, आराम से सब कुछ बोलने का कोशिश करो। थोड़ा लैंग्वेज वगैरह मैंने आपको समझा ही दिया, एक बार लास्ट बार बोल दो, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इसका क्लोज कर देता है। और कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ ठीक है लेना, सर। आपको बोल रहा कंपनी के बारे में पढ़ना है, और जो काम करता है आप करोगे उसके बारे में पढ़ लेना, बस काम खत्म। और यूट्यूब चैनल देख लेना, हो जाएगा आपका सिलेक्शन। बोलिए, टेल हाँ मी हाँ। समथिंग अबाउट योरसेल्फ लास्ट, अच्छा Good से evening, बोलिए। sir. I am a resident of Dream City, Mumbai, and I have completed my graduation from NJ Acharya DK Maratha College in specialization of banking and insurance. Thank you for shortlisting me for this interview. My name is Arun Bhaskar Shetty, and I am pursuing my MBA degree from Indra School of Business Studies in specialization of finance. I have completed my internship from Y to generate lead for the company. Has a master in system within a week, and I have been offered a PPO, that is pre-placement in of 5 lakhs from Whitehead Junior, and I compared two houses, that is SBI funds and fund houses, SBI and HDFC, and it was a great project. And that's all about me. If you want to know anything about me, please let me know. I will be very grateful to answer you. ठीक है, आई वुड लव टू आंसर यू। थोड़ा लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा, आई वुड लव टू आंसर यू। ग्रेटफुल क्या होता है? आई वुड लव टू आंसर यू। अच्छा सॉरी, आई विल लव टू आंसर यू। हाँ सॉरी, हाँ आई विल ग्रेटफुल ये हो लैंग्वेज जाएगा। गलत हो हाँ गया ना, थोड़ा सा लैंग्वेज इंग्लिश फनी हाँ हाँ लैंग्वेज है। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ ग्रेटफुल गया। बोलने से वो लोग घमंडी है, समझे? आई विल ग्रेटफुल टू जॉइन योर ऑर्गेनाइजेशन, आई वुड लव टू आंसर हाँ एनी हाँ, ऑफ योर क्वेरीज, ठीक है? थोड़ा बहुत इंग्लिश आई में विल लव इंक्लूड टू करिए, आंसर प्रॉपर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपका हो जाएगा, मेरे को कोई लगता नहीं कोई दिक्कत है। अच्छा से दीजिए, ऑल द बेस्ट। हाँ, थोड़ा ये टेल मी समथिंग अच्छे से पढ़ लोगे, कंपनी के बारे में पढ़ लोगे तो मेरे हिसाब से। सर एक हाँ बोलिए। डाउट था, अगर उन्होंने पूछा कि तुमने वाइट हैट के रिजेक्ट क्यों किया, तो उसका स्मार्टली आंसर क्या करूं? वाईफाई में कितना चल रहे थे? 3,50,000 था, बट मतलब अभी हम तो बोलने वाले ना कि हमारे लिए सैलरी इशू नहीं है, लर्निंग स्किल्स बहुत ज्यादा है, तो हाँ हाँ, उन्होंने पूछा कि वाइट हैट्स क्यों रिजेक्ट किया आपने, वो पीपीओ क्यों इससे रिजेक्ट पहले आप किया। कहाँ पर काम करते थे? पहले नहीं वहां पर नहीं, कितना आई साल एम अ किए थे फ्रेशर। काम? यार फ्रेशर, फर्स्ट टाइम ही आप नहीं, काम कर रहे हो ना? तो और इंटर्नशिप किए थे क्या व्हाइट हाँ हाउस में? कितना साल किए थे? हाँ, वाइट हैट्स में मेरी इंटर्नशिप थी। कितना साल था? 2 महीना था मेरा मिस। तो 2 महीना। एक्चुअली रियल रीजन क्या था आपका छोड़ने का? रियल रीजन बिकॉज रीजन वो मार्केटिंग कंपनी था। लर्निंग नहीं था क्या?
नहीं नहीं, मार्केटिंग कंपनी था, मींस पोटेंशियल कॉल करना पड़ता था कस्टमर्स को, तो ये नहीं है लर्निंग स्किल, कुछ नहीं है, नॉर्मली कॉल करो। हाँ तो वही बोलेगा सर, देयर वाज नॉट टू मच ऑफ लर्निंग एंड एट प्रेजेंट आई वांट टू फोकस ऑन माय लर्निंग, दैट्स व्हाई दैट वाज वन ऑफ द रीजंस। बट लर्निंग के बारे में बोलेगा और कुछ मत बोलेगा। तो दैट वाज नॉट इन कोरिलेशन विद माय करियर आई फेल्ड, सो आई थॉट कि टू चेंज माय प्रोफाइल, दैट इज द ओनली। अगर पूछा तो ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से दिए हो, आपका हो जाएगा। अपने आपका अचीवमेंट वगैरह आप अच्छा, कंटेंट वगैरह आपके पास है ऑलरेडी, तो लैंग्वेज वगैरह आपको, मेरे को नहीं लगता दिक्कत देगा। ओके जी, हाँ ठीक है। सर कोई डाउट रहेगा तो मैं आपको टेक्स्ट करता हूँ। एकदम 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 कोई दिक्कत नहीं है। 4 बजे है ना, ऑल दी बेस्ट। थैंक यू, ठीक है जी पूजा जी। थैंक यू सो ओके, मच सर फॉर गिविंग योर टाइम। वेलकम वेलकम। थैंक यू पूजा मैम ऑल्सो फॉर सपोर्टिंग। है पूजा मैम? शायद वो भी नहीं है शायद से, ओके थे ना। नहीं वो बिजी रहेंगे, चलेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम।